તેજસ્વીની સંસ્કૃતિ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના સાનિધ્યમાં 7 દિવસની આ યોગ યાત્રામાં આજે બીજા દિવસના સુપ્રભાતમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. પ્રકૃતિના સાનિધ્યમાં જ્યારે યોગનો અવસર મળે છે, એ અવસર ખૂબ ભાગ્યશાળી વ્યક્તિ હોય એને જ મળે છે. અને એમાં પણ શહેરથી જ્યારે 100-150 કિલોમીટર દૂર સાપુતારાના હિલ સ્ટેશન ઉપર જ્યાં પ્રકૃતિ સોળે કળાએ ખીલી ચૂકી છે, બ્રહ્મ મુહૂર્તની વેલા આ જીવનમાં ખૂબ મહત્ત્વની વેલા છે. અને જ્યારે આ બ્રહ્મ મુહૂર્તની વેલાના અંદર આપણને યોગનો અવસર મળે છે, એ અવસર ખરેખર માણવા જેવો છે. અને એમાં પણ આપણને પૂજ્ય હેતલ દીદીનું જ્યારે સાનિધ્ય મળે છે, એ અવસરને ક્યારેય ચૂકવો જોઈએ નહીં. કારણ કે પૂજ્ય હેતલ દીદીના મુખારવિંદથી જે સરસ્વતી વહે છે, ગંગા જમના વહે છે, એના અંદર જો આપણે ડૂબકી લગાવીએ તો જ ખરેખર આપણને આપણો યોગ સાર્થક થયો હોય એવું લાગે છે. કારણ કે યોગ તો બહુ લોકો શીખવે છે આપણને. તમે વિવિધ જગ્યાએ દરેક પ્રકારના યોગ ક્લાસ ચાલે છે, મોટા મોટા સંતો મહંતો લઈને બધા જ આજે યોગ પાછળ છે. પણ યોગને આધ્યાત્મિક સાથે કેવી રીતે જોડવું? વ્યક્તિ કરો યોગ રહો યોગના સૂત્ર સાથે આગળ વધે છે, પરંતુ જ્યારે પૂજ્ય દીદીના સાનિધ્યમાં યોગ કરવામાં આવે છે, એ યોગ સૌથી અલગ લાગે છે. એનું મુખ્ય કારણ શું છે? તો એનું મુખ્ય કારણ એ છે કે પૂજ્ય હેતલ દીદીની વાણીમાં જે મધુરતા છે, જે આત્મીયતા છે, અને દરેક વ્યક્તિના કલ્યાણ માટે કે તમે સ્વસ્થ થઈ ગયા, નિરોગી થઈ ગયા, હવે શું કરવાનું? તો શું શરીરના શુદ્ધિકરણ, શરીર સ્વસ્થ થઈ ગયું એટલે પછી યોગ બંધ કરી દેવું? ના. ત્યાંથી ખરેખર આપણું જીવનની નવી શરૂઆત થાય છે. શરીર સ્વસ્થ, નિરોગી, તંદુરસ્ત બન્યા ત્યાર પછી જે યોગ કરવાનો છે, યોગ આપણને અહીંથી મળે છે. અને આધ્યાત્મિક સાથે યોગ દ્વારા આપણે પરમ પુકારુ પરમાત્માના ચરણોમાં પહોંચવાનું છે. તો એ પ્રકારનો યોગ જ્યારે આપણને શીખવા મળે ત્યારે એ આપણી સાધના સફળ કહેવાય. આમ તો અષ્ટાંગ યોગના 8 પગથિયાં આપણને બતાવવામાં આવ્યા છે, અને દીદી વારંવાર એનું આપણને વર્ણન પણ કરે છે. યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ. પણ સમાધિ સુધી પહોંચવા માટે આ પ્રથમ જે 4 ચરણ છે, યમ, નિયમ, આસન અને પ્રાણાયામ, એ દીદી અહીંયા આગળ આપણને એટલી સરળતાથી અને સહજતાથી આપણને શીખવાડે છે કે એકદમ બાળક હોય, ધારો કે 5 થી 8 વર્ષનું, એને પણ મગજમાં ઉતરી જાય. અને 80 વર્ષનો વૃદ્ધ હોય અને એ અત્યાર સુધીમાં કંઈ ના કર્યો હોય, એ વ્યક્તિના શરીરમાં પણ જો એ મનમાં પણ જો એ યોગ બેસી જતો હોય, તો એ ખરેખર દીદીના ચરણોમાં ખરેખર વંદન કરવાની જરૂર છે. આજે આ બ્રહ્મ મુહૂર્તના અંદર આપણે બીજા દિવસનું યોગાભ્યાસની શરૂઆત કરવાના છે. તે પહેલાં આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિને અનુસરીને આપણે અહીં સૌ પ્રથમ દીપ પ્રાગટ્ય કરીશું. અને આપણા એક વિશેષ મહેમાન માજી મામલતદાર શ્રી કેસરબા અહીંયા પધાર્યા હોય, માલતીબેન જ્યારે પધાર્યા હોય તો આપણે એમને આમંત્રિત કરીશું દીપ પ્રાગટ્ય માટે.
તો માલતીબેનને વિનંતી છે દીપ પ્રાગત્ય માટે આગળ આવે. સાથે તમે પણ આવી જાઓ. અને હા, કેસરબાને પણ આવી જાઓ. તે ઉપરાંત આપણા નવજવાનને પણ થોડી તક આપીએ તો, એટલે કે અમરભાઈને મારી ખાસ વિનંતી છે કે એ પણ દીપ પ્રાગત્યમાંથી આવે. અને આપણા યોગ શિબિર અને આપણી કથાને પણ જે અવારનવાર ઉત્સાહિત કરી રહ્યા છે એવા પિયુષભાઈને પણ હું વિનંતી કરું છું કે દીપ પ્રાગત્યમાંથી આગળ આવે. અને આપણું એક અનમોલ રતન છે એ અનમોલભાઈને પણ વિનંતી છે કે દીપ પ્રાગત્ય માટે આગળ આવે. ના ના આપ દીપ પ્રાગત્ય માટે કેસરબા, હેતલબા અને અનમોલભાઈને તાળીઓથી વધાવીએ. આ દીપ પ્રાગત્ય દ્વારા આપણા જીવનમાં પ્રકાશ ફેલાતો રહે. પ્રકાશ એટલે એવો પ્રકાશ કે જે તેજસ્વી હોય. જ્યારે આપણે તેજસ્વી ધામમાં હોઈએ ત્યારે આપણા દરેકના વિચારસરણી પણ તેજસ્વી બને અને આપણું જીવન ઉન્નત બને. એ માટે આ અવસર ખૂબ જરૂરી છે. બહેનોને થોડી વિનંતી, તમારા વચ્ચે પગ લંબાવીને થોડા પાછળ સુધી બેસો. થોડી વચ્ચે વચ્ચે જગ્યા રાખીને બેસો. હા, અને લાઈનમાં બેસો. તમે આ નાઈક સાઈડ પર આવે. બસ. આપણે જ્યારે પણ બેઠક લઈએ છીએ ત્યારે સુવ્યવસ્થિત બેઠક લેવી. લાઈનબદ્ધ બેસવાનો પ્રયાસ કરવો. એકના પાછળ એક બેસવાનું છે. તો પરમ કૃપાળુ પરમાત્માને ચરણોમાં વંદન કરતા આ બ્રહ્મ મુહૂર્તના અંદર પૂજ્ય હેતલ દીદીનું સાનિધ્ય પ્રાપ્ત કરીને અમે અમારા જીવનને ધન્ય માનીએ છીએ. અને એના પડે પડના સમયનો આપણે લાભ લેવાનો છે. તો હવે હું આ મંચ પૂજ્ય હેતલ દીદીના ચરણોમાં સમર્પિત કરું છું. અને પૂજ્ય દીદીને સાનિધ્યમાં કોટી કોટી વંદન. શિવોહમ શિવોહમ શિવોહમ. જીવનની માન્યતાઓ બદલીશું, એ જ માન્યતાઓ આપણું जीवन बदली नाखसे. हमारा स्वरूप क्या है वो जानने के लिए ज्ञान की जरूरत है. हमारा स्वभाव क्या है वो जानने के लिए भक्ति की जरूरत है. और हमारा स्वधर्म क्या है वो जानने के लिए कर्म की जरूरत है. पूरे जीवन को जानने के लिए, पूरे जीवन को मानने के लिए और जीवन को पाने के लिए ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों का त्रिवेणी संगम हो. इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में, दंडकारण्य में, वासुरना धाम में, तेजस्वी संस्कृति धाम में आइए साधना की शुरुआत करते हैं. आंखें बंद, मेरुदंड सीधा, नजर सामने, लंबी गहरी सांस लेते हुए उद्गीत प्राणायाम करेंगे 5 बार. ओम का उच्चारण. ओ
भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हे रक्षक, प्राणधारक, दुखनाशक, आनंददायक, हम तुम्हारे दिव्य तेजोमय स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं और अपने आप को तुझे समर्पित कर रहे हैं। हमारी बुद्धि में आपका ज्ञान स्थिर हो। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधय अष्टो अंगानि। महर्षि पतंजलि रचित अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि मुख्य 8 अंग है। बाह्य जीवन की शुद्धि के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य 5 यम है और आंतरिक जीवन की शुद्धि के लिए शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान ये 5 नियम है। यम और नियम का पालन करते करते अगर हम आसनों का अभ्यास करेंगे, प्राण साधना प्राणायाम करेंगे, प्रत्याहार सभी इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाएंगे और अलग अलग चक्रों के ऊपर धारणा करते हुए ध्यान करेंगे, तब हर एक व्यक्ति समाधि तक पहुंच सकता है। सबसे पहले जरूरी है यम नियम। बाह्य जीवन की शुद्धि के लिए अहिंसा माने मन, वाणी और कर्म से भी किसी की हिंसा ना करे। सत्य, हमेशा सत्य बोले, लेकिन सामने वाले को प्रिय भी हो, सामने वाले को हितकारी भी हो, ऐसा सत्य। अस्तेय, अस्तेय का मतलब है चोरी नहीं करना। हम चोरी शब्द को सिर्फ इतना ही समझते हैं कि किसी के घर में से गरफोड़ चोरी करना या किसी के पॉकेट में से पैसे ले लेना, यही चोरी है। लेकिन शास्त्र में व्यापक अर्थ में किसी के शब्दों को, किसी के विचारों को अपने नाम से कहना, वो भी एक चोरी है।
बहुत गुटार्थ। किसी की संपत्ति का हम मालिक हो जाए, ऐसा सोचना भी चोरी है। अगर हम कहीं पे नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, और वहां पे राष्ट्र के काम के बदले हमने खुद के लिए 2 घंटे खुद का काम कर लिया, स्वार्थ का काम कर लिया, तो वो 2 घंटे की जो सैलरी है वो भी चोरी है। बहुत व्यापक अर्थ है। और जिसने हमें ये धन कमाने की बुद्धि दी, जिसने हमें ये धन कमाने का अवसर दिया, उसका हम भाग नहीं निकालेंगे। इष्टान भोगान ही वो देवा, कि हमें जो मिला है उसमें से थोड़ा धन भी हम संस्कृति के कार्य के लिए नहीं उपयोग करेंगे, तो वो पूरा धन चोरी है। तो इतना व्यापक अर्थ है अस्तेय, मतलब चोरी नहीं करना। अपरिग्रह, अष्टांग योग में से सिर्फ यम नियम में अपरिग्रह, महावीर ने सिर्फ अपरिग्रह शब्द लिया और अपरिग्रह पे इतनी बड़ी क्रांति करी, इतना बड़ा जैन समाज खड़ा कर दिया। तो सोचो समझो कि पूरी हमारी संस्कृति तो पूरा दरिया है, उसमें तो सबने, जिस जिसने क्रांति की, जिस जिसने महान आत्मा में अपनी गणना करवाई, उन लोगों ने तो सिर्फ एक एक शब्द लिए और एक एक शब्द से बड़ी बड़ी क्रांति की। तो पूरा अष्टांग योग समझ में आ जाए तो क्या नहीं हो सकता, मानव क्या नहीं कर सकता। अपरिग्रह मतलब संग्रह वृत्ति नहीं। हम अच्छे विचार तो संभल के रखते हैं, लेकिन बुरे विचार भी संजो के रखते हैं। किसी ने हमारे साथ अच्छी बात नहीं की, किसी ने हमारा अपमान किया, किसी ने हमारा सम्मान नहीं किया, किसी ने हमें चोट पहुंचाई, दुख दिया, सब बातें हम संग्रह कर लेते हैं। और फिर वो संग्रह होने से भी हमारा मन विचलित होता है, मन बीमार होता है। स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं कि शारीरिक रूप से ही आप उभरा हुआ सीना, कसी हुई कमर, सिकड़ा हुआ पेट, यही स्वास्थ्य है, ऐसा नहीं है। हमारा मन भी स्वस्थ रहना चाहिए। मलिन मन कभी भी ईश्वर में लीन नहीं हो सकता। मन की शुद्धता बहुत ही जरूरी है। सिर्फ आहार से रोग होते हैं इतना ही नहीं है, विचार से भी रोग होते हैं। कितना सर्वे किया है कि आहार सबके सात्विक होते हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों को कैंसर हो गया, फिर भी उन लोगों को कमर दर्द है, फिर भी उन लोगों को वायु के संबंधित विकार है। तो क्यों? आहार सही है, लेकिन इसके साथ विचार सही नहीं है। इसलिए भगवत गीता में भगवान ने कहा, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्ट सुकर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जिसका आहार विहार संतुलित हो, जिसका विचार भी संतुलित हो, जिसका सोना और उठना भी अर्थपूर्ण हो, वो व्यक्ति योगी है। तो वो है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है कि बाह्य चीजों पे तो हमने बहुत ही वीरता प्राप्त कर ली, लेकिन अंतः शत्रु भीतर की ओर देखे, अंदर की इंद्रियों पे संयम लाएंगे, तब फिर बाह्य शत्रु पे विजय जो प्राप्त करता है उसे वीर कहते हैं, लेकिन आंतरिक शत्रु पे जो विजय पा लेता है उसे महावीर कहते हैं। तो वो है अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म जैसी चर्या, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ हम इतना निकालते हैं कि काम वासना पे कंट्रोल, वही ब्रह्मचर्य है और वही अभी चल रहा है। संत महंत सभी लोगों में बात, ज्यादातर बात, कई ऐसे सिद्ध संत है जो ये बातें बताते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ब्रह्मचर्य का मतलब इतना ही करते हैं कि जिसको काम वासना पे कंट्रोल आ गया, शादी नहीं की, वो ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्म जैसी जिसकी जीवनचर्या हो। ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, ब्रह्म की ही बातें करते हो,
ब्रह्म को ही सत्य मानते हैं, ब्रह्म नाद को सुनते हैं, अनाहत नाद को सुनते हैं, तो ये है ब्रह्मचर्या, ब्रह्म जैसी चर्या। बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊं तो एक पानी का स्वभाव होता है बहना। उसको ज्यादा गर्म कर दिया जाए तो वो बाष्प में रूपांतरित हो जाता है, और ज्यादा ठंडा कर दिया जाए, फ्रिज में रख दिया जाए तो वो बर्फ में रूपांतरित होता है। लेकिन वो अपना जो खुद का मूल स्वभाव है, वो जब भी उसको ये अवस्था प्राप्त होती है, अनुकूल वातावरण मिल जाता है, तो वो अपनी मूल अवस्था प्राप्त कर लेता है। कोई उसे ऐसी बातें करके, ऐसे विचार रोप के उसको क्रोधित कर देता है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में वो अपनी सहज अवस्था में होता है। कितने भी अपराधी हो, कितने भी दुराचारी हो, लेकिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने से वो कभी भी ऐसा सोच नहीं सकता। ये सारी हत्याएं, सारा अत्याचार, दुराचार आफ्टरनून होता है। क्यों? क्योंकि हमारे मन पे दूसरों का प्रभाव पड़ने लगता है, हमारे विचारों पे दूसरों का प्रभाव होने लगता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना और ब्रह्म की बातें करना और ब्रह्म का सोचना, वही है ब्रह्मचर्य। आइए साधना की शुरुआत करते हैं। हर एक कार्यक्रम की शुरुआत हम दीप प्रज्वलन के करते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा अपो दीपो भव। प्रभु के आगे तो हमने बहुत दीप जला लिए, लेकिन हमारे अंदर की ज्योति, जो हमारी अंदर की चेतना है, उच्च चेतना, वो उच्च चेतना ये किसने जगाई? ये हम प्रज्वलित करते हैं क्या? वो है ही, लेकिन उसको संभल के रखने के लिए आइए भस्त्रिका प्राणायाम के साथ हमारी अंदर की ज्योति को, आत्म ज्योति को जगाते हैं। आंखें बंद, मन सहज, लंबी गहरी सांस लेनी है, लंबी गहरी सांस छोड़नी है। नाभि के ऊपर, फेफड़ों के ऊपर तक पूरा श्वास अंदर भरो, पूरा श्वास बाहर छोड़ो। भरते हुए सोचे मैं दीप प्रज्वलन आत्मज्योति का कर रहा हूँ। सांस को बाहर छोड़ते मन में सोचे अंदर का अंधकार मेरा दूर हो रहा है, बाहर फेंक रहे हैं।
अंधकार छोड़ो। दीप प्रज्वलन करते हुए अस्तु मां सद्गमय असत्य माहसी, हे प्रभु परम सत्य तरफ को ले जा। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा, काम से राम की ओर ले जा, वासना से वासुदेव की ओर ले जा। रिलैक्स, आंखें बंद, मन सहज। जैसे सांस आती है आने दो, जाती है। अर्जन किया। अब आज शनिवार है, साधना के साथ भक्ति, तो भक्ति पूर्वक साधना। लोग कहते हैं कि हमें तो मंदिर में जाना है, हनुमान जी को तेल चढ़ाना है, फिर ये काम करना है, वो काम करना है, तो फिर प्राणायाम का समय ही नहीं मिलता। और साधना भी हो जाए। साधना इसे कहते हैं भक्ति पूर्वक साधना। तो कपालभाति हमें करना है। तो आज शनिवार है, हनुमान चालीसा के साथ कपालभाति कर लो, क्या दिक्कत है। बिजी लाइफ में इजी है योग, एक साथ सब काम हो जाएगा, है ना। 1 घंटा चलने से जो एनर्जी बर्न होती है, आधा घंटा आसन करने से जो एनर्जी बर्न होती है, सिर्फ 15 मिनट कपालभाति करने से इतनी एनर्जी बर्न होती है। तो बताओ बिजी में इजी हो गया कि नहीं। 15 मिनट में 1.5 घंटे का आराम मिलता है। तो आइए करिए, हनुमान जी को याद। आंखें बंद, मन सहज। जैसे सांस आती है आने दो, जा। खुद के सभी जगह हमारा ऐसा मन होता है। तो आइए आज प्रकृति के सानिध्य में, जब नवरात्रि भी नजदीक में ही है, तो नवरात्रि में तो आप 7 दिन तक हमारे साथ रहने वाले हो, लेकिन नवरात्रि में संतवाणी चैनल से कई लोग घर पे भी बैठ के ये ध्यान अभ्यास कर रहे हैं। उन सबको भी नवरात्रि की शुभेच्छा। अभी अधिक महीना चल रहा है, तो उसमें पहले विधि सीख लोगे तो नवरात्रि में बाहर कोरोना की वजह से हम गरबा गाने नहीं जा सकेंगे, तो घर में एक ही जगह पे हम गरबा कर सकते हैं। उसकी हम विधि बताते हैं। आगे लेना है। जय हो। दोनों हाथ ऊपर करके